That was way back in 1980. And then that I finished my work probably by again being in Arunachal. So that's, I would like to give my respect to Mr. Adu, to Mr. Gamdi, and uh, Yumde Yogam Gamle, and Srimati Donam Nyodajini, and Srimati and Principal of the Academy, and ICDS Jumnang Pado, and my wonderful teachers, Angani workers, all that, and the NGOs that have been working for children. God bless all of you. So today we are starting off with something new, and I feel so happy that Arunachal is taking the lead in this starting of the day called Habilitation Day. And we all heard of Disability Day. December 3rd is Disability Day. Have you heard of that? So now, before we celebrate Disability Day, we are celebrating Habilitation Day. And this concept actually has been floated in 2024. And I was fortunate to be among a signatory of this consensus committee that has floated this from the Indian Academy of Child Development. And hence you see three logos here. This is the Indian Academy logo, and this is JACA, and that is the Neurodevelopment chapter of India. Okay, so they had a great time when we were making the poster. He says, we don't get any habilitation day in the in any material in the net, but it is because the launching is done today, and the scientific article was already published in the Indian Journal of Pediatrics in 2024. And so let us start with this program. Now, I would like to know how many Anganwadis are here? All are Anganwadis. Okay, very nice. And how many NGOs are here? And how many teachers are here? Okay. Now you see, this is a celebration of a collaboration today, because all of us actually are working for childs. हम लोग सब अच्छा हम इंग्लिश में जो बोल रहे हैं समझ में आया है? हिंदी में बोलेंगे. देखिए हम लोग सब बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारा अपना अपना ग्रुप में काम कर रहा है. आंगनवाड़ी सेपरेट, एनजीओ सेपरेट, टीचर्स सेपरेट. तो ये कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है. इसीलिए हम लोग ये आज ये डिसीजन लिया है अकॉर्डिंग टू जो कंसेंसस गाइडलाइंस आया है, जो वी विल पुट ऑल ऑफ यू टुगेदर. तो एडवांटेज क्या होगा? हम लोग सब का जानकारी एक ही होगा. जब जानकारी एक ही होता है, हमारा डिलीवरी सिस्टम अच्छा होगा. देन who will be sending, किसको हम क्या भेजना है बच्चा को? बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज, हमारा लिंकेज अच्छा नहीं होने से क्या होगा? हमारा बच्चा सफ़र करेगा, पेरेंट्स सफ़र करेगा. हमारा सारा जीवन हमने देखा है, जो बच्चे पेरेंट्स को लेके आता है, तो ये हम खुश नहीं हैं. क्यों? हर बच्चे घर में बड़ा होना है. हर बच्चे का जो सुविधा हम लोग सब लोग सोसाइटी देना होगा, वो हम लोग सब करना पड़ेगा. ओके, सो आई होप आप लोग समझा है क्यों हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं. क्यों आप टीचर सोचेंगे हम तो आंगनवाड़ी का काम नहीं करता, और सोशल वर्कर भी आंगनवाड़ी का साथ काम करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो आपका इरादा है वो आंगनवाड़ी ने कैरी करना पड़ेगा. लेकिन आंगनवाड़ी का इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दूसरा है.
सो ऐसे वो नहीं हो पाते हैं. सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग क्या क्या है, क्यों हम लोग इकट्ठा है, कैसा हम लोग बच्चा को अच्छा से बड़ा कर सकेंगे. ओके, ऑलराइट. सो नाउ लेट अस गेट द नेक्स्ट. ओके, सो नाउ हैबिलिटेशन डे हम लोग का थीम है एम्पावरिंग एवरी चाइल्ड. Empowering every child. So every child में we have all types of children. All types of children. And then how are we going to empower them? We are going to empower them by early habilitation, where the Anganwadis, the NGOs are responsible and the pediatricians are responsible. And lifelong inclusion, this is where the teachers are involved. The Anganwadis are responsible to a certain extent. The NGOs and the teachers are going to put them into lifelong inclusion. Next slide, please. Okay, so far actually हम लोग सोचते थे habilitation, rehabilitation is only for disability. और हमारा घर में तो कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो हमने क्यों समय का टाइम देंगे डिसेबिलिटी के लिए. ये होते हैं सबका. सब लोग सोचते हैं इस बेचारा ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं सोचते हम क्या करना है इस बच्चे के लिए. ये सब लोग यू मस्ट ऑल कम फॉरवर्ड. हम क्या करेंगे इस बच्चे के लिए, सब लोग हेल्प कर सकते हैं. देयर इज नो डेफिनेट डिपार्टमेंट that is only going to work for disability. All of us are going to work for disability. So now the understanding is, so जब disabled होता है बच्चा एक, तो इसका क्या होता है, a long term physical, mental, intellectual, sensory problem. And because of this problem, ये बच्चा function नहीं कर सकते हैं. Okay, now before I proceed, उसका प्री टेस्ट हो गया सबका? प्री टेस्ट सर्वे सबका हो गया? ओके, तो प्री टेस्ट सर्वे हो गया तब प्लीज हैंड ओवर. क्यों हम लोग एक पोस्ट टेस्ट लेंगे जो लेक्चर के बाद आप कितना समझा है. प्लीज कलेक्ट द प्री टेस्ट सर्वे. गमी, प्री टेस्ट सर्वे कलेक्ट कर ले. ओके, सर्वे नहीं दिया. ओह, ओके, हम लोग 5-10 मिनट्स में खत्म कर लेगा. हाँ, प्री टेस्ट ओनली टिक मार्क करना है. प्लीज टिक मार्क एंड गिव इट बैक. Okay, so all papers kindly return. Please collect all papers by now. Yeah. Okay. Yes. Please return all the papers. Okay. आपका आप सब ध्यान से सुनिए. कुछ लिखना है तो लिखिए. क्यों? फिर पोस्ट टेस्ट होगा to get a feedback जो कितना समझाए हैं.
Okay. नहीं, there are some here. Just take the papers. Yeah. Okay. All right. So let's get back. I'm sorry for this disturbance, but okay. अच्छा सुनिए. Okay. All right. Back. अच्छा सुनिए. हाँ. ओके, हम स्टार्ट करेंगे अभी. हम स्टार्ट करें. क्यों, हम ध्यान से सुनना पड़ेगा. ओके, क्यों टेस्ट है इसके बाद. अच्छा, तो अभी देखिए, हम लोग जब बड़ा हुआ है, हम हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सेंसरी डेवलपमेंट होता है. ओके. लेकिन किसी किसी इस डेवलपमेंट में बीच में उन लोग का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. ओके. ये गड़बड़ी के लिए उन लोग फंक्शन नहीं कर सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, अपना कपड़ा पहन नहीं सकते हैं, वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होते हैं. ओके. बट देन द मैक्सिमम बैरियर क्या है? सोसाइटी इज द मैक्सिमम बैरियर. क्यों? हम लोग उन लोग को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं. किसी कोई वॉक नहीं कर सकते हैं तो हमारा रैंप नहीं है उसको अच्छा से ऊपर लेके जाने के लिए. कोई बात नहीं कर सकता है तो हम लोग उसको कैसा टीचिंग देना है हम लोग नहीं जानते हैं. कोई देख नहीं पाते हैं, इसी हम लोग सोचते हैं उसको कैसा क्या समझना हम लोग नहीं कर पाते हैं. दैट इज वाई सबका ऊपर नीचे होगा इन देयर डेवलपमेंट, लेकिन हम लोग सोसाइटी हिसाब से हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकेगा तब उसका प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता. सो नाउ द मैक्सिमम ब्लेम किसका ऊपर है? सोसाइटी का ऊपर है. दैट ऑल ऑफ अस वी आर नॉट डूइंग इनफ टू हेल्प देम. ओके. So this is okay. Yeah, from here से कर लेते हैं. Yeah. This is the point. Okay. So आपका डिसेबिलिटी क्या है? तो ये क्लियर है. नेक्स्ट. और नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड. ओके. सो अभी सो फार हम लोग सुने थे जो डिसेबल होने से रिहेबिलिटेशन करना है. इजंट इट? ये शब्द सुना कि नहीं? रिहेबिलिटेशन सुना है. तो सब लोग सुना है रिहेबिलिटेशन. सो रिहेबिलिटेशन में क्या चाहिए? हमको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, हमको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए, हमको स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए. बट देन ये सब थेरेपिस्ट कितना है? जितना हमारा डिसेबिलिटी है कितना थेरेपिस्ट है. सो ये है इनइक्वल सप्लाई ऑफ थेरेपिस्ट. सो रिहेबिलिटेशन जब हम लोग बोलते हैं उससे हम लोग क्या समझते हैं? दैट there is a set of intervention designed to optimize functionality and and reduce disability in individuals with health conditions in interaction with their environment. So that means rehabilitation means हम लोग का कुछ डिजाइन है
और ये डिजाइन हम लोग देते हैं बच्चे को जब हम लोग सोचते हैं ये बच्चा डिसेबल है। ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट। तो अभी हम लोग हैबिलिटेशन बोल के आए हैं। जो हैबिलिटेशन क्या है? Process that helps the individual with disabilities to attain, keep, or improve skills and functioning for daily living that they have never fully developed. Okay? So habilitation क्या है? जो habilitation हम लोग उसको जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब हम डिटेक्ट किया है जो ये काम नहीं कर सकता है दूसरा बच्चे का जैसे। जब हम लोग सोचा है ये बच्चा नहीं कर सकते हैं, दैट इज दिस टाइम हम लोग स्टिमुलेशन स्टार्ट करता है। तब तक हम लोग डिसेबल बोल के नहीं बोलेगा, हम क्या बोलेगा उसको कि ये बच्चा समय पर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाए। सो हम लोग का सबका ध्यान आना होगा। जो अभी हम लोग क्या करना होगा, उसको एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन देना होगा। Okay, so that is the purpose of habilitation, that we are not doing intervention but we are doing stimulation so that it will help every child to attain उसका potentiality कितना है और functionality बढ़ाने के लिए। जब हम लोग potentiality पर ऊपर काम करता, functionality का ऊपर काम करता, then you will find that the child का वो उसका हैंडीकैप कम हो जाता है इन द एनवायरनमेंट और वो भी अच्छा से सोसाइटी में इंक्लूड हो जाता है। ओके, सो अभी हम लोग का बहुत सा गवर्नमेंट प्रोग्राम है। ये आरबीएस के प्रोग्राम है कि नहीं? आईसीडीएस प्रोग्राम है। Then we have the district development in early interventional centers. Then we have block interventional development centers. आप लोग सुना कि नहीं ये तीन आइटम? So you don't have early intervention, you don't have DIAC, you don't have BIAC. So this is very very important. So हमारा अभी इसी में it is a big gap actually. Why? क्यों हमने बोला है ये big gap है? Because अभी डिसेबल होने से, नेक्स्ट स्लाइड में नीचे तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी जब हम लोग बोलता है ये बच्चा डिसेबल है तब कितना साल हो जाता है? ऑलमोस्ट 3 to 4 years। बच्चा नहीं चल पाता है, बच्चा नहीं सीख सकता है, बच्चा नहीं सुन पाता है। तब जब विजिबल डिसेबिलिटी हो जाएगा तब हम लोग बोलता डिसेबल। बट बिफोर दैट एक्चुअली यू विल हैव दैट बहुत चीज हो गया बच्चा का जो हम लोग डिटेक्ट नहीं किया। अभी तक ये चल रहा है, अभी तक ये चल रहा है। सो नाउ आप लोग ध्यान से ये देखिए। अभी ऑटिज्म का बात सुने हैं आप लोग? ऑटिज्म का बात सुने हैं? हम लोग डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म देता है 3 साल में, लेकिन बच्चा का ऑटिस्टिक फीचर्स 6 महीने से निकलता। यू सी, सो नाउ कितना टाइम हम लोग लॉस किया, बिकॉज फर्स्ट 3 years इज कॉल्ड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। इसी में हमारा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। सो वी हैव अ चांस, हम लोग जितना जल्दी उसको पकड़ सकते हैं उतना जल्दी बच्चा इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी आप लोग सुने हैं? सेरेब्रल पॉलिसी, तो सेरेब्रल पॉलिसी आप देखिए एक बच्चा नहीं चल सकेगा, उसको कितना फिजियोथेरेपी देना होता है, कितना ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना होता है, उसका लाइफ ही बर्बाद हो गया। लेकिन
हम लोग 2 साल के बाद उसको डायग्नोसिस देता है, लेकिन उन लोग बच्चा देखिए हेड होल्डिंग 3 महीना, सिटिंग 6 मंथ्स, स्टैंडिंग 12 मंथ्स, इसी में नहीं हम लोग पकड़ सकता है उसको, और हम लोग पकड़ता है 2 साल के बाद. It is a shame on us. I think we have to be very, very careful that we need to catch them as early as possible. The learning disability. Now teacher है यहाँ पे, आप लोग तो जानते हैं, जो बच्चे हमको 6 साल में 7 साल में रेफरल मिलता है, बच्चा नहीं पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, कुछ भी नहीं लिखता है, ऐसे बाकी सब ठीक है लेकिन लिखना नहीं सीखता है, 7 साल में भेजता है. Isn't it true? 7 साल में भेजता है, लेकिन ये बच्चे एक्चुअली 2 साल से as early as 2 years उसी से ही हम लोग का पता चलता है जो उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. You see, so if we do not look into the early signs of developmental milestones, then we find that हम लोग का देर हो जाते हैं to help the child. Okay, all right. Then we come to hearing impairment. Hearing impairment में भी आप लोग देखेंगे, जो बच्चे को कुछ नहीं करता है जब तक वो बात नहीं बोलते, बट नाउ रिकमेंडेशन आया है जो बच्चे का हियरिंग टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हम लोग करना है एंड 4 weeks आफ्टर बर्थ करना है, सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ स्टिमुलेशन as early as 6 months. You see, so here is the idea of our rehabilitation. Our concentration must be in early detection and early screening. Okay, all right. Okay. Now, another idea of why we need to do early detection and early screening is, another idea is that the brain develops, the foundation develops maximum 3 साल के अंदर हमारा मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है. फर्स्ट डेवलपमेंटल कर्व होता है आंख का, विजुअल, तब होता है हियरिंग का, तब होता है ब्रेन का, इंटेलिजेंस का. सो हम लोग का ऐसा होना है, जो स्टिमुलेशन हम लोग करेगा, हम लोग एक पैटर्न से करना पड़ेगा. विजुअल स्टिमुलेशन, हियरिंग स्टिमुलेशन, इंटेलिजेंस स्टिमुलेशन, ये पैटर्न से जब करेगा हम लोग, तब हम लोग जैसा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उस पैटर्न से हमारा स्टिमुलेशन चलेगा. नाउ 3 साल तक ये मैक्सिमम स्टिमुलेशन होता है. उसके बाद हमारा कॉग्निटिव स्टिमुलेशन होता है अप टू 5 years of age, एंड 5 years में हमारा बच्चा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है. सो नाउ अभी हम अर्ली इंटरवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन 3 साल में देगा, 4 साल में देगा, 5 साल में देगा, then I have lost all the important period of our time. Okay, so this is what आप लोग बहुत ध्यान देना पड़ेगा. Next slide please. अच्छा, so that means आपका क्या है, जो आप लोग सब लोग ध्यान देना पड़ेगा अर्ली स्क्रीनिंग में एंड अर्ली डिटेक्शन में. आप लोग तो ये सब लोग यूज करता है, तो क्या मिलता है इसमें, अब बताइए हमको क्या मिलता है इसमें. क्यों? हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम इज ऑलरेडी ऑन, but because of not understanding what we are doing, that is why the early screening is not yet established. क्या मिलता है इसमें, क्या क्या मिलता है इसमें? आंगनवाड़ी, आप एक उठ के बताइए हमको.
क्या मिलता है इसमें, इस बुक में? क्यों हर पेशेंट का, हर पेरेंट का बीच में ये बुक है। लेट देम से। आंगनवाड़ी एक आ जाइए। नो नो, दिस इज, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब कैमरा लीजिए साइड। आंगनवाड़ी आके हमको बोलना पड़ेगा ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस बुक से। क्या करते हैं इस बुक से? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके ओके, इस बुक में क्या है? क्या है बताइए? नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। यू सी गैप कहाँ पे है? दिस इज द मेन थिंग। अब हमको बताइए क्या है इसमें? किताब सबके पास है, सबने देखा है, हम जानता। यू सी दिस, बिकॉज ये हम क्यों किया लाया है, अपना एक्सपीरियंस से हम ये लाया है। क्यों? बच्चे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, गया घर में, 3 साल के बाद हमारे पास आया है, तब हमने ये सब चेक किया था। जब चेक किया तब तो बोलते खाली वैक्सीनेशन दिया है और कुछ नहीं बोला हमको। कोई नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं, हम बहुत दुख है, हम बहुत दुख है। क्यों? हमारा ऑफिस पेपर से काम नहीं होगा, ग्राउंड लेवल में काम नहीं चल रहा है। देखिए इसमें सब चाइल्ड डेवलपमेंट का पिक्चर्स है, ओके। एंड यहाँ में बहुत अच्छा से दिया हुआ है what the baby will have to do, what the baby is not doing, क्या नहीं कर रहा है बच्चा, और आप लोग पेरेंट को क्या बोलेगा स्टिमुलेशन के लिए, सब इसमें है, ओके। सो नाउ आई वांट यू ऑल टू गो बैक। अभी हम थोड़ा आप लोग को पूछेगा, आप लोग तो बच्चे को क्या करते हैं, वैक्सीनेशन देता है आंगनवाड़ी, वैक्सीनेशन देता है आप लोग, आप, ओ आशा देता है वैक्सीनेशन, और आप लोग क्या करता है, आप लोग क्या करते, आप लोग क्या करते? So we need clarity in all these. So I think Ijam, you're taping it, no? So we have to. बताइए। Very good. पकड़ेगा। It is not about excelling, एक से ज्यादा बोल रहा है, वो बात नहीं है, इस बच्चे का लाइफ है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग सब लोग देखेंगे। क्यों? ये समझ नहीं समझने से आप रेड फ्लैग्स नहीं समझेगा। अच्छा, अभी आप ओके, अभी आप लोग का एक कार्ड है पास में, डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन कार्ड, देखिए तो
developmental observation card. Did you give them that one? Oh. Oh, this one also needed to be given. You can ask somebody to make photocopy. Okay, all right. Unfortunately, okay. So अभी हम लोग क्या करेगा? जो ये तो बुक है, ये बुक में एक्चुअली इलस्ट्रेशन है बहुत, शायद दैट इज कॉजिंग अ लिटिल कंफ्यूजन फॉर यू. हाँ, सो अभी आप लोग एक कार्ड हम लोग देंगे आपको. दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन कार्ड. अभी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. तो नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, सो ये डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन कार्ड में क्या मिलेगा? वो हमें फर्स्ट है सोशल स्माइल. बच्चा कब हंसा है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बच्चा स्टार्ट करते हैं 2 महीने में, स्टार्ट करते हैं हंसने के लिए. ओके. तब फिर नेक होल्डिंग. नेक होल्डिंग, ये नेक सीधा कब हुआ है? 4 महीने से स्टार्ट होता है. ट्रांसफर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक हाथ से एक हाथ में सामान कब ले जाते हैं? 6 महीने में स्टार्ट होता है. स्पीच वर्ड्स दादा मामा, दद्दा दद्दा मम्मा मम्मा, ये 9 महीने में. स्टैंडिंग 12 महीने में. और स्पीच सेंटेंस बोलता है 18 महीने में. ओके, सो दैट इज द बिगिनिंग. सो दिस इज इन एडिशन. आप तो ये यूज कर रहे हैं, लेकिन एवरीबॉडी मस्ट ऑल्सो हैव दिस कार्ड विद देम, बिकॉज दैट मीन्स दिस इज द एक्सपेक्टेड टाइम by which the child should be doing on this. Okay? तब आप बच्चे को जब हिस्ट्री पूछेगा तब तो आप मिल जाएगा दे ये चीज वो कब किया है, कब किया है. ओके. तब आप रेड फ्लैग्स उठाइए. अभी रेड फ्लैग्स का पेपर. या उसका पहले, उसका पहले. हाँ, ओके. सो अभी हमारे हाथ में क्या है? हमारा MCP कार्ड है. उसी में हम इमीडिएटली जब बच्चे आते हैं वैक्सीनेशन के लिए और आप लोग होम विजिट करते हैं, वो चेक करेगा. चेक करके आप मिलेगा जो ये काम वो कर रहा है कि नहीं. तब ये डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन कार्ड है आपका पास. तो आपका देन यू कैन पुट इट. ये 2 महीने में स्टार्ट होना था, ये 4 महीने में हुआ है. ये 5 महीने में होना था, ये 7 महीने में हुआ है. ऐसा कुछ आपका आइडिया हो जाएगा ना उसमें. हाँ, आइडिया हो जाएगा. जो वो कब बैठा है? अपर लिमिट है 9 months. 9 months तक बच्चा नहीं बैठने से दैट मीन्स आप उसको इमीडिएट स्टिमुलेशन करना होगा, उसका मोटर स्टिमुलेशन करना होगा. नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग. 12 महीने में स्टैंडिंग नहीं करने से तब हम लोग उसको स्टिमुलेशन करना पड़ेगा. वॉकिंग एंड यस, हैंड एंड नीज क्रॉलिंग. 14 महीने में क्रॉलिंग नहीं करेगा तब वी विल हैव टू इन्फॉर्म. सो यहाँ में आपका सब अपर लिमिट है. सो अभी आपका हाथ में क्या है? एक डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन कार्ड विच विल गिव यू द लोअर लिमिट, कब स्टार्ट होना है. देन हम लोग का MCP कार्ड है, जो क्या क्या हम क्वेश्चंस पूछना है. देन वी हैव दिस रेड फ्लैग, ये अपर लिमिट. ये 3 चीज आपका हो जाने से आई विल बी हैप्पी दैट यू विल बी एबल टू एटलीस्ट समय पर आप
बोल सकेंगे जो आप ये स्टिमुलेशन किया है। स्टिमुलेशन तो देना है देना, एक है डॉक्टर के पास आप लोग भेजना है फॉर रेफरल। डॉक्टर ने देखेंगे, कंफर्म करेंगे आपका जो फाइंडिंग है, उसके बाद उन्होंने जो करना है उनका काम करेंगे। ओके, क्लियर? हाँ, सो इसमें रेड फ्लैग में हमारा क्या क्या आइटम्स है? एक है ग्रॉस मोटर, तो ग्रॉस मोटर है सेरेब्रल पॉलिसी का, ठीक है, समझाना। ग्रॉस मोटर क्या है? हाथ पाव। ये सेरेब्रल पॉलिसी केस नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है फाइन मोटर। फाइन मोटर क्या है? हाथ का काम, हाथ का काम। ओके, लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसा होता है? 2 साल में बच्चा बात करता है, लेकिन उसका पहले हमारा 3-4 चीज होता है। सो ये सब होना होगा बिफोर द चाइल्ड विल स्पीक। देन साइकोसोशल माने सोशल स्माइल देता कि नहीं, नॉट लाफिंग and no playful activities and no waving or pointing. Goodbye बोलेगा, वो कुछ नहीं करेगा। Pointing, वो देखो देखो ये फैन है ऐसा बोलेगा, वो नहीं देखेगा। ओके, सो यहाँ में हम लोग का सब जो हम लोग का डिसेबिलिटी होता है, यहाँ में हम लोग डिसेबिलिटी बोल के नहीं लिखा है, यहाँ में डेवलपमेंट बोल के लिखा है। ये डेवलपमेंट का अपर लिमिट ये है, उसका बाद हम लोग कुछ केयर नहीं करने से बच्चा डिसेबल्ड हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, ओके, तो अभी कुछ समझ में आया है ना? थोड़ा कुछ समझ में आया? ऑलराइट, ओके, सो हाउ मच टाइम हैज इट टेकन? Yeah, so a little bit about autism now. Okay. No problem. I'll sit. No problem. Yes. Okay, so अभी थोड़ा क्लियर हुआ है, थोड़ा रेस्ट लगता, और अब हम लोग should do you need a break? कुछ ब्रेक है क्या? No problem. No. Okay. All right. So अभी ये है, हमने बोला है रेड फ्लैग्स, इसको रेड फ्लैग्स बोलता है। तो हमने लाल झंडा, टाइम क्रॉस करने से लाल झंडा ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं छोड़ेगा। आप लोग एनीवेयर, नो एनजीओ, नो टीचर, नो आंगनवाड़ी विल लीव हिम टू सी हिज डेवलपमेंट। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, गो अहेड। ओके, सो अभी हम लोग अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आएंगे, दैट इज ऑटिज्म। आप लोग तो सब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जानता कि नहीं? हाँ, ऑटिज्म बहुत बढ़ रहा है पहले से। ओके, अमेरिका में ऑटिज्म एक बच्चे 33 बच्चे का बीच में एक बच्चा होता है ऑटिज्म। इंडिया में हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है बोल के एक बच्चे एवरी 125 चिल्ड्रन के बीच में होता है। ओके, सो यू सी नाउ जो हम लोग बहुत सावधान रहना होगा। तो ये सावधानी कैसे रहेंगे हम लोग? एक है, हम लोग डेवलपमेंट उसका देखना होगा, अर्ली स्क्रीनिंग करना होगा। सो हर बच्चे का अर्ली स्क्रीनिंग करना होगा at 4 months, at 8 months, at 12 months, at 16 months, at 24 months. ओके, हर बच्चे का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा हम लोग। ओके, अच्छा, तो इस स्क्रीनिंग में हम लोग का पता चलेगा जो कोई बच्चा आंख में नहीं देखता, कोई बच्चा नहीं हंसता आपको देख के,
कोई कोई बच्चा को बाय बोलेगा वो नहीं करता, कोई कोई बच्चा को बुलाएगा नहीं सुनता। ओके, सो इस बच्चे को आप लोग एक चेकलिस्ट देखना होगा। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स। इसको बोलते हैं एम चैट, एम चैट। ओके, अच्छा, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको एम चैट एक देंगे, ओके, और साथ साथ में एम चैट का जैसा और एक पिक्चर्स देंगे। ओके, आप लोग उसको दोनों को मिलाना पड़ेगा, जो आप लोग पिक्चर देख के कौन सा आइटम आप लोग समझा। ओके, अच्छा, सो ये हम लोग कर रहे हैं सो दैट ये इसका कॉपीराइट है, हम लोग सबको ये देने नहीं सकेगा, लेकिन हम एक पिक्टोरियल टूल बनाया है दैट वी कैन गिव टू एवरीबॉडी। सो नाउ वी कैन सी जो इसका साथ कितना मिलता है, नंबर 1। और पिक्टोरियल टूल यूज करने से हमारा लैंग्वेज का जरूरी नहीं है, अब हिंदी हो या गालो हो या असमीज हो या बंगाली हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पिक्चर समझ गया तो सब समझ गया। ओके, सो ये हम लोग एक्सरसाइज थोड़ा अभी करेगा। ओके, ऑलराइट, सो प्लीज गिव देम। अभी एम चैट निकालिए। हाँ, एम चैट एंड पिक्टोरियल, number 1 pictorial, early one, yeah. Okay. अच्छा, अभी आप लोग एम चैट में उसमें लिखा हुआ है नंबर 1, ये बात है। सो वो देख के पिक्चर में आप निकाल लीजिए कौन सा पिक्चर नंबर आपका टिक मार्क मार दीजिए। ये नंबर 1 का साथ पिक्टोरियल में 1 2 3 4 दिया है, लेकिन एम चैट में भी 1 2 3 4 दिया है, लेकिन कभी 1 का साथ मैच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप नंबर लिख लीजिए। समझा ना? हाँ, उसको इसमें दे देने से। अच्छा, अभी काम करिए, आप एम चैट का नंबर 1 पढ़िए। नंबर 1 एम चैट में क्या लिखा है नंबर 1 आइटम? Yeah, does your child? If you point at something Yeah. across the room, does your child look at it? Okay, very good. So number 1 ये pointing का बात। ओके, सो अभी पिक्चर में ढूंढिए कौन सा नंबर पॉइंटिंग है? 1। ओके, सो ये मैचिंग हो गया। सो ऐसा करके आप लोग पढ़ के कौन सा नंबर है समझा कि नहीं, तब हमारा क्लियर हो जाएगा। जो ये पिक्चर वाला देख के आप लोग डॉक्टर को भेज सकेगा, आइडेंटिफाई कर सकेगा। ओके, पिक्चर वाला देख के, क्यों? एम चैट इज अ कॉपीराइट, वी कैन नॉट गिव देम। सो नाउ इफ दे सी द पिक्टोरियल, and pictorial is language free, so we'll see. Okay, can somebody take the lead? You take the lead. Yeah, you can take the lead of 1 2. But the fact is that
आंसर मत बताइए पिक्टोरियल का, पिक्टोरियल अपना से करना होगा। अच्छा ये भी आप लीजिए, हाँ वीडियो करिए, हाँ अभी। तो सेकंड पॉइंट में है, does you ever wondered if your child might be deaf? Number 2, have you ever wondered if your child might be deaf? अब पिक्टोरियल में कौन सा डेफनेस से, सुनने से रिलेटेड है, उसको देखना है। आप लोगों को कभी लगा है कि आप लोग का हाँ, बच्चा deaf। सुनने में प्रॉब्लम है, नहीं सुनता है ऐसा? वो पिक्चर को मैच कीजिए। बुलाने से नहीं सुनता है, आप लोग बुलाने से नेम कॉल। हाँ एग्जैक्टली, नेम कॉल है ना। हाँ चल, सो विच नंबर, तो हमारा पता चल जाएगा जो इंस्टेड ऑफ दैट दिस कैन बी यूज्ड। हाँ जहाँ में 6 लिखा है वहाँ पे 1 लिख दीजिए, और जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 6 लिख दीजिए। सो ये दोनों में लिखिए। मैचिंग कर लीजिए। Number 3 is, does your child pretend or make believe? For example, pretend to drink from an empty cup, pretend to talk on a phone, or pretend to feed a doll or stuffed animal. Means कोई एक्टिंग करता है कि सामने होंगे, पानी पीता है या मम्मा को पिलाता है, एनिमल्स को लेके पानी पिलाना, वो बर्तन सारी खोलता है ना, वैसा बच्चा लोग करता है। उसका अभी पिक्चर से इसमें से पिक्चर में देख के ढूंढिए कौन सी पिक्चर में। या है वो। पिक्चर दोनों को सब करता है। हाँ जी, 2 है हमारे पास, शीट 2 है, 2 शीट्स। हाँ ठीक है, हाँ, जो नहीं है आप छोड़ दीजिए, तो हम लोग बाद में शिफ्टिंग कर सकेगा। इसमें नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नंबर 4, does your child like climbing on things? For example, furniture, playground, equipment or stairs? चढ़ने की, कूदने की, चढ़ने की, अगर ऐसा कोई कुछ करता है मम्मा को करो, उसमें वो सीरियल को बहुत पसंद करता है, क्या उसका वो पिक्चर के साथ मिलाएंगे। ये पिक्चर को ये पिक्चर से मैच करना है। नो मैम, वो जो हमारे जो ये लिस्ट दिया ना, इस पॉइंट को उस पिक्चर से मैच कर दिया। 6 होगा ये वाला। Exhibits unusual behavior, जैसे ये hand clapping, ये वाला sheet। बच्चा लोग जो चेयर में जंप मारना, जाना, वो सब So next point, number 5. Does your child make unusual finger movements near his or her eyes? For example, does your child bring his or her fingers close to his or her eyes? जैसे आप लोग देखिए ना, बच्चे जैसा सब करता है ना, सब करके सब करता है ना, सब करके देखिए, वो सब वहाँ पे पिक्चर्स के साथ मिलाएंगे। इसको unusual behavior बोल सकते हैं। Unusual behavior. And then number 6, does your child point with one finger to ask for something or to get help? For example, pointing to a snack or toy that is out of reach. ऐसे पकड़ने की कोशिश, उंगली करने की कोशिश, किसी सामान को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे पॉइंट आउट। लापा से नहीं बोल के सामान वगैरह जैसे पॉइंट करके आप लोगों को दिखाएगा ना, उसका चाहिए वाला सामान लोग को पसंद ना नहीं पहुंच सकता और मेरा क्या है और ना तो ये खेल ना चाहिए मतलब ये तो 10 फॉलो ये तो खुद बॉडी भी अगर So number 7 is,
Does your child point with one finger to show you something interesting? अभी हमने 6 पॉइंट में था उसकी रिक्वायरमेंट खाना पीना या ये लाइट ऑन या ऑफ. अभी इसमें है कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग देखा, कुछ अलग डिफरेंट देखा तो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है. गाड़ी वाले का काम आ रहा है ना, वो सबको देखिए पॉइंट करके आप लोगों को बता रहा है. So next point is number 8. Is your child interested in other children? For example, does your child watch other children, smile at them or go to them? दूसरे बच्चों को देख के आपका बच्चा हंसता है, स्माइल देता है, बात करने की कोशिश करता है, उनके पास जाता है कि नहीं, ये पॉइंट है. इसको पिक्चर से मैच करना है. हाँ, बच्चा जो उसका एज से उससे बड़ा बच्चा उसको स्माइल करता है ना, खेलने चला जाता है. Okay, number 9. Does your child show you things for bringing them to you or holding them up for you to see, not to get help, but just to share? For example, showing you a flower, a stuffed animal, or a toy truck. सामान को लेके आके आप लोग को दिखा रहे हैं ना, कोई कुछ सामान लेके आए, इंटरेस्टिंग वाला नया सामान वो लेके आए, आप लोग को दिखा रहे हैं कि वो लेके आए, देखो आप लोग उसको देखो, वो आप लोग को हेल्प भी नहीं मांग रहे कि उसको ले लो बोलते हैं, वो लेके आके आप लोग को दिखा रहे हैं. Pictures. Number 10. Does your child respond when you call his or her name? For example, does he or she look up, talk, or babble, or stop what he or she is doing when you call his or her name? आप लोग जब बच्चा जा रहा होगा चल रहा होगा बुलाने से हाँ बोल के नहीं बोलने से ऐसे बोलना ऐसे करके देखिएगा या तो पकड़ा ऐसे करके चला जाएगा ना. हाँ रेस्पॉन्स ही कर लेने नहीं करके भी जैसे आप लोग का बुलाया रहो वो एनी हाउ जेस्चर होने से भी वो रेस्पॉन्स कर रहे. रेस्पॉन्स टू फिजिकल जेस्चर. Then number 11. When you smile at your child, does he or she smile back at you? अगर आप स्माइल करते हैं तो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करता है स्माइल करके. हम क्या देखने को वापस करते हैं स्माइल बैक करना है ना, जैसा आप लोगों को स्माइल करा तो आप लोगों को स्माइल बैक ये बच्चा करता है क्या. Number 12. Does your child get upset by something noises? For example, does your child scream or cry to noise such as a vacuum cleaner or loud music? मतलब बच्चा हर रोज की आवाज वगैरह सुन के लाउड नॉइज अक्सर गाना गाना होगा, ट्रक का साउंड, उसके बाद ड्रिलिंग का, वॉशिंग मशीन का, कुकर का ऐसा साउंड को सुन के वहाँ से बंद करेगा, जब ऐसा बंद करेगा वो सब साउंड से उसको डिस्टर्ब करेगा बोला. Number 13. Does your child walk? बच्चा चलता है कि नहीं, उसको नोटिस करना है. पिक्चर जो आपको दिया है पिक्चर से मैच करना है. Does your child look you in the eye when you are talking to him or her, playing with him or her, or dressing him or her? Means eye contact करता है बच्चा आपसे जब आप कुछ कर रहे हैं, उसके पास हैं, उसको आप लोग जब कमरा चेंज करा रहा होगा बच्चा को तब आप लोग आई कंट्रोल करते, फीडिंग कर रहा होगा तो आई कंट्रोल करता है. Then number 15. Does your child try to copy what you do? For example, wave, bye-bye, clap, or make a funny noise when you do. Means आपकी कॉपी करता है बच्चा कि नहीं? इसको आप क्या कर रहे हैं उसको आप जैसे कि बाय बाय बोले तो बच्चा आपको बाय बाय लाइक कर रहा है क्या, हाई फाइव दिए तो हाई फाइव लाइक कर रहा है क्या, आप ऐसे झाड़ू लेके मारे तो झाड़ू लेके आकर पीछे पीछे मार रहे हैं वो कर रहे हैं यूज कर रहे हैं. 16. If you turn your head to look at something, does your child look around to see what you are looking at? Means that आप दोनों ऐसा बैठा है ना, आप लोग अपना हेड ऐसा बैठ के कुछ देख भी रहे तो बच्चा भी ऐसा देख रहा है कि मदर क्या देख रहा है, फादर क्या देख रहा है. आप लोग का वो हेड बैक को वो भी नोटिस करेगा क्या देखने के लिए कुछ हो रहा है.
Number 17. Does your child try to get you to watch him or her? For example, does your child look at Want you for something? praise or say, look I'm or just watch writing. me? I can. मतलब कि बच्चा कोशिश कर रहा है कि अटेंशन मिले, वो जो कुछ कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि नहीं, अगर उसे कुछ गिर गया है तब भी आप देख रहे हैं कि नहीं, कुछ लिख रहा है या कुछ खा रहा है तो वो ऊपर मुंह उठा के आंख उठा के आपको देखता है। इसको भी आप पिक्टोरियल जो दिया है उसमें मैच करिए इस पॉइंट से। Number 18. Does your child understand when you tell him or her to do something? For example, if you don't point, can your child understand put the book on the chair or bring the blanket? Means आपको जैसे आपका फोन चार्जिंग फोन को लेके आओ, ये सामान लेके आओ, उसको बच्चा अंडरस्टैंड कर देगा। आपको छोटे छोटे चीजें उसका पानी बोतल अपना बोतल को लेके आओ, वो सब बोलने देंगे, वो लेके आ रहा है क्या बच्चा। Number 19. If something new happens, does your child look at your face to see how you feel about it? For example, if he or she hears a strange or funny noise or sees a new toy, will he or she look at your face? Means, wait. जैसे कि इसके लिए नया साउंड कोई आ गया ना, तब हम उस पे कर देंगे, उसको देख के आपको देखिए, आप कैसे एक्सप्रेशन देंगे, आपका एक्सप्रेशन कैसा है ना, मदर का एक्सप्रेशन को देखिएगा, कुछ और नया होने से पहले मदर कैसे रिएक्ट करना है, आपको रिएक्शन। 20. Does your child like movement activities? For example, being swung or bounced on your knees. Means movement activities जैसे कि उछालना, बच्चों को उछालना, स्विंग में खेलना, स्लाइड में खेलना, वो सब एक्टिविटीज पसंद करते हैं बेबी जो। Thank you. I hope everybody got this. Thank you.
So this is where Anganwadis and NGOs will have to play a very great role. Number one is pre-conception counseling. Pre-conception counseling माने क्या? सबका, everybody must have good growth, good nutrition, should be well immunized, no drugs or alcohol during pregnancy, no medications during pregnancy. And then we have to see that there should not be any infection during pregnancy. Okay? So this is a very important part along with early screening and early detection. It is a very important part that the mother and the father must be in good health. That means the entire population has to be in good health. All right? Then we have that the mother and father relationship should be very good. And there should not be any stress factor. So for that also you need to do counseling. Pre-marital marital counseling करना होता है, so that everybody lives happily, because it has been seen जितना stress ज़्यादा होगा तो अभी autism क्यों बढ़ रहा है? We do not know क्यों बढ़ रहा है, but we know stress ज़्यादा बढ़ रहा है, we know pollution ज़्यादा बढ़ रहा है. आप लोग जब ऊपर आए थे कितना प्लेनेट का बात देखे सुने हैं, पढ़ा कि नहीं? ग्रीनर प्लेनेट के बाद पढ़ा कि नहीं? अब जब ऊपर यहाँ में आया है कितना ग्रीनर प्लैनेट के बात लिखा हुआ था, कौन पढ़ा? एक बोलिए, यू टेल मी, क्या लिखा है ग्रीनर प्लैनेट के बाद? नो, यू हैव टू ऑब्जर्व, जहाँ पे जाता है ऑब्जर्व करिए. यू हैव, योर माइंड शुड नॉट बी वन ट्रैक, हैव टू बी, ऐसा फैला हुआ है होना होगा. अब कहाँ में आ रहा है? जाका सेंटर में आ रहा है. जाका सेंटर में क्या क्या वॉल में लिखा है, क्यों हम लोग आया है, क्या करना होगा? हाँ, अच्छा, तो अपने वॉल में सबने लिखा है अबाउट ट्रीज, फॉरेस्ट, गाछ मत काटो, ऑल अबाउट पोल्यूशन. बिकॉज हम लोग देखते हैं जो डिसेबिलिटी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. ओके, so that means side by side with rehabilitation, with habilitation, हम लोग we will have to look after about this aspect also. Okay, all right. So आप लोग greener planet के लिए भी काम कर रहे हैं with this habilitation process. समझा है ना? Okay. नेक्स्ट बात है लैक्टेशन मैनेजमेंट. बच्चा जन्म होने के बाद अच्छा से लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है. क्यों? ब्रेस्ट फीडिंग विल मेंटेन द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड फॉर गुड डेवलपमेंट. ओके, देन अर्ली डेवलपमेंटल फॉलोअप हमने ऑलरेडी बोला है. द फॉलोअप मस्ट बी डन at 4 months, at 8 months, at 12 months, at 18 months, at 24 months. Then another very important thing, अभी हम लोग जानता है जो बच्चे जन्म होता है स्मॉल फॉर डेट, जानता है स्मॉल फॉर डेट हमको बोलिए, कोई आंगनवाड़ी बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल फॉर डेट? कौन बच्चा रिस्क में है? डेवलपमेंट का रिस्क में कौन कौन बच्चा है वो बताइए हमको. Premature, very good. Premature. And so बहुत risk factor है actually. So preterm is one. Now the important बात क्या है? अभी हम लोग देखता है जो निको प्रीटर्म होगा तो निको में जाएगा, स्मॉल फॉर डेट होगा कुछ प्रॉब्लम होगा एसएनसीयू में जाएगा. ये वर्ड तो एकदम सब में फैला हुआ है. बट व्हाट हैज हैपेंड? निको में सब काम होता है जब बच्चा पेरेंट को हैंड ओवर करता है. आफ्टर दैट इट इज हैंडेड ओवर टू यू. इट इज हैंडेड ओवर टू यू. आप लोग को बच्चा हम देता है डॉक्टर ने, आप लोग देखते, आशा देखता है, आप लोग देखता है, समझा? सो इसीलिए आप लोग का जो जानकारी, डेवलपमेंटल असेसमेंट एंड डेवलपमेंटल स्टिमुलेशन क्या करना है,
ये जानकारी बहुत होना है। क्यों? बच्चा वापस आता है हम लोग का पास 3 साल में जब वो नहीं चलता। सो ये 3 साल तक जिम्मेदारी आप लोग का हाथ में है। ओके, सो इट इज वेरी, बिकॉज हम लोग का रूरल एंड अर्बन है। अर्बन में तो डॉक्टर देख लेते, लेकिन रूरल में फिर आंगनवाड़ी देखेंगे। So this is very important. So this developmental follow-up and so on. Okay, and parent counseling. Parent counseling is very important. जब आप MCP कार्ड यूज करेगा, देखेगा जो हाँ ये इतना टाइम में होना था, ये नहीं हुआ, और रेड फ्लैग का टाइम क्रॉस किया, तब क्या करना होगा? पेरेंट काउंसलिंग करना होगा। बिठा के बोलेगा देखो ये बच्चा दूसरे बच्चे का जैसे वो नहीं कर रहा है, आप लोग ध्यान, अभी ऐसा नहीं जो बड़ा होने से हो जाएगा। ये तो सब लोग बोलते हैं बड़ा होने से बात करेगा, ऐसा नहीं। हम लोग का इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है डेवलपमेंट का, उस पीरियड में हम लोग डेवलप कर सकेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे अपना को देखिए, जो ये जो क्ले पॉट, ये जो पॉट जो बनाता है, मिट्टी से जो पॉट बनाता है, हाँ, जब भीजा रहता है तो कितना अच्छा से घूमता है। सो पॉट अब बना लिया। सो जब भीजा रहता है तब पॉट बनता है। मिट्टी जब सख्त हो जाते हैं तो पॉट नहीं बना सकते। सो एक ही किस्म का चीज है हमारा बॉडी सिस्टम। जब भीजा रहता है लाइक अ स्पंज, जब रहता है बच्चा स्पंज, सोचिए हम लोग जितना उसको स्टिमुलेशन करेगा उतना बच्चा अच्छा होगा। सो दिस इज द क्रिटिकल पीरियड जो हम बोल रहे हैं, इसी में आप लोग समझिए। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो अभी बच्चा ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने से अभी कहाँ में भेजेगा आप लोग? वो है, सो भेजेगा कहाँ? नंबर 1 हाई ब्लॉक में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। हम लोग को पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, लेकिन दैट इज द गवर्नमेंट सिस्टम। ब्लॉक में भेजेगा, तब फिर नहीं होने से डिस्ट्रिक्ट में भेजेगा। और वी हैव डॉक्टर आलो एंड अदर पीडियाट्रिशियंस अराउंड, सो उनके पास सब भेजेगा कंफर्मेशन के लिए एंड फॉलो अप के लिए। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, another thing before this. हाँ, नहीं बिफोर, इसका पहले। हाँ, तो देखिए, सो अभी हम लोग का हेबिलिटेशन प्रोसेस जो बोलता है, ये है लो इंटेंसिटी मल्टी मोडल थेरेपी बिफोर 3 years of age. सो ये है होम बेस्ड प्रोग्राम, home based. So this is where Anganwadis will have to give home based program. Then we will have to give community based program. 4-5 सब लोग बैठ के ये इसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग सब लोग उसको हेल्प करना होगा। नहीं होने से क्या होता है, ये पेरेंट जब बाहर में जाता है वो ये यही नहीं जाता है। क्यों? सब लोग उसको हंसता है, सब लोग बोलता है कुछ दूसरा बात। सो नाउ कम्युनिटी बेस्ड management is very important so that acceptance and inclusion into society. Okay, so that is all right. Now the most important thing is क्यों हम लोग यहाँ पे आया है? ये है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है, एंड ये जिम्मेदारी हर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ऊपर है। गवर्नमेंट तो कर रहे हैं, we are doing privately, but we feel we can understand, हम लोग समझता है जो नहीं ये काम ठीक से नहीं चल रहा है। सो हम लोग आज डॉक्टर आदो ये प्रिपरेशन किया है, बहुत कष्ट से प्रिपरेशन किया है, that to collect everybody around so that ये मैसेज जाता है for children in Siang district. No, hello, everybody will be good healthy children from this place. All right. Now another thing, ये पहले जो पिक्चर था लाल पिक्चर पहले का, हाँ इसका पहले, और ओके। नाउ अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, जो
हम लोग तो हमारा हेल्थ सिस्टम अंडर क्या है, WHO का अंडर हेल्थ सिस्टम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी से हम लोग का, सो दैट वन यूनिफॉर्म वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम होता है। ओके, सो उन्होंने, यूनिसेफ ने निकला ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितना आदमी सुने हैं ये SDG? हैव यू हर्ड अबाउट SDG? SDG हम लोग का जो काम हो रहे, ऑल प्रोग्राम्स हो रहे, इज अंडर मीटिंग द SDG goals, sustainable development goals, and it is under the United Nations Rights to Children Convention, because we are, हम लोग इंडिया साइन किया है that every child will have his rights, and according to that we are all working for the right. Okay, so thank you very much. Are we now, after this lecture, now you look at this, Kal Hai Disability Day. Now देखिए, and disability day में caption क्या है? It is not a disability day, it is a special ability. So ये बात हम लोग का लिए is not, because we are here for what? Disability कम होगा, disability prevention करना होगा, हम लोग facilitate करेंगे, support करेंगे, so that ये बच्चा disability नहीं होगा, right? Isn't it? So ये मैसेज देके हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आप लोग का मैसेज मिले है अच्छा से और काम कर सकेंगे, ठीक है? अच्छा, ये पेपर में आप लोग का सबका नाम लिखिए, क्यों? वी विल गेट बैक टू यू अगेन। क्यों? अभी ये नाम लिख के सब डिपॉजिट कर दीजिए पेपर, ओके? वी विल गिव यू सेपरेट पेपर लेटर। क्यों? अभी हम लोग ये कागज देख के आपका कितना आइडेंटिफिकेशन हुआ है, दैट विल बी माय रिजल्ट्स, दैट विल बी द सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस जाका। एंड देन डॉक्टर आदो है यहाँ पे, सो आपने जितना मिलता है, सो वी विल कम टू नो नाउ हैज दिस बीन सक्सेसफुल और नॉट, दिस टॉक। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। Now, yeah, session is open for questions. distribute the post. ग्रास रूट लेवल पे काम। मैंने जो, मुझे जो उनकी भी प्रॉब्लम यही समझ में आती है कि पेरेंट्स मैम दे लिव इन डिनायल्स। मीन्स मेरा पहले डे केयर भी था, तो मेरे पास 1.3 इयर्स के बच्चे भी आते हैं, एंड इन वन इंस्टेंट आई कैन मेक आउट द चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड, लाइक कुछ, क्योंकि एज अ मदर ऑल्सो। सो लेकिन पेरेंट्स दे जस्ट इन डिनाइल कि मतलब दे डोंट वांट टू इवन लिसन कि मेरा बच्चा बात नहीं सुनता, वो एनवायरनमेंट नया है मैडम, दूसरा मैडम को देख के डरता होगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना मैम। तो उसमें हम लोग भी हेल्पलेस, और अल्टीमेटली यही मैं बोलती हूँ कि आदो क्लिनिक में चले जाइए, वहाँ पे बेस्ट डॉक्टर हैं, दे विल हेल्प यू आउट। तो दे गेट एनॉयड भी मीन्स एक इरिटेशन हो जाता है उनका, वो मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि हाउ कैन यू कॉल माई किड एज अ स्पेशल चाइल्ड और अ डिफरेंट चाइल्ड। तो बोलने में भी बहुत, समझाने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लवली क्वेश्चन। आप लोग समझा ना क्वेश्चन क्या था? जो आप लोग आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो बच्चे का प्रॉब्लम है, लेकिन अब पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। So that is why I said parent counseling. So now each one of you will be faced with this problem. नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। So आपके पास तो अभी टूल है ना? पहले कागज है डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन कार्ड, बच्चा इस टाइम पे स्टार्ट होने को था लेकिन नहीं हुआ। अभी बच्चा आपका इस उम्र में काम कर रहा है, देन अपने देन रेड फ्लैग्स आप दिखाइए, रेड फ्लैग्स दिखाइए। जो देखिए आपका बच्चा तो अपर लिमिट क्रॉस किया है अभी, ये तो हमारा डॉक्यूमेंट है that बच्चा क्रॉस किया है। सो इट इज टाइम, हमारा बेस्ट
बेस्ट इंस्ट्रक्शन आपको हम जो दे सकेगा इज नाउ दैट आपने ये स्टिमुलेशन करना पड़ेगा. स्टिमुलेशन सब आपका एमसीपी कार्ड में लिखा हुआ है. ओके, आपने ये स्टिमुलेशन स्टार्ट करिए एंड देन आपने डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को दिखाना है. दिस इज योर एडवाइस, दिस इज माय एडवाइस. And then after that, जब convince नहीं होगा, then comparison with other children also you can do. You can call the parents and see what the child is doing. That no, it is not going along in the same line. And remember, हम लोग बोलते हैं जो हर बच्चा अलग अलग है, लेकिन developmental process by and large एक ही है, एक ही है. By and large, that means ये humanity का है ना, वो by and large वो एक ही है. So you can behavior कुछ different हो सकते हैं, लेकिन development generally remains the same. Okay, so I think you are convincing. Now you have the tools with you. You have the tools. Huh? Okay, all right. Okay. Or questions? चाहूँगी जैसे एज बोलने से सेम है, क्लास में क्लास भी सेम है, सब स्टूडेंट कुछ कुछ लिखो बोलने से लिखता है, पढ़ो बोलने से पढ़ता है, और कोई कोई पढ़ता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है, चुपचाप बैठा है, जितना भी गाली देने से भी कुछ भी नहीं करता है. ऐसे स्टूडेंट को क्या किया जाए? क्या किया जाएगा ना? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. जो आपने उसको जितना कमांड करता तब भी वो नहीं लिखता, दैट मीन्स अभी नंबर 1 है जो उसका मोटिवेशन नहीं है. दूसरा का मोटिवेशन है, इसका मोटिवेशन नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, जो आप बोला है वो सुना कि नहीं, जो आप बोला है वो समझा कि नहीं. ओके, जो आप बोला है वो लिखने का मन नहीं है, हाथ बहुत वीक है उसका, लिखने का मन नहीं है. Okay, so that is why you find that the child is not responding at that particular time. So you will have to attack these 4 points. आपने देखेगा उसका hand activity कैसा है. Okay, उसको बॉल देगा खेलने के लिए, उसको शेप बनाने देगा, पेगिंग देगा, सब फाइन हैंड एक्टिविटी आप लोग लेके रखिए स्कूल में, और उसको एक्टिविटी ये सब दीजिए, ये सब ठीक है. देन हैंड राइटिंग आप देखेगा, तब कर्सिव राइटिंग में देखेगा, देन कैपिटल एंड स्मॉल में देखेगा. ओके, तब अब पता चल जाएगा यहाँ से जो उसका हैंड ठीक है. ओके, हैंड बिल्कुल ठीक है, and hand may not be the cause for it. Then which I said was understanding language. आपने बोलेगा ठीक है ये पढ़ो. Okay, this is an apple and the apple is red. I'm just saying that. Okay, तो वो पढ़ सकता कि नहीं? वो पढ़ लिया, लेकिन अभी बेटा क्या पढ़ा था आप, हमको समझाओ. You teach me what you learned. You tell me what I have. Then in that itself you will come to know whether he has understood. You see, so like that you will have. जैसा ऐसा हो गया एक बच्चा, तो इसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन, मोर टाइम उसके पास जाके you will have to teach. And then motivation उसका सब जानता हूँ, समझ भी गया, सब गया, लेकिन नहीं करेगा. So motivation comes from where? Motivation comes from responsibility. Now you will have to go back to the family. Family में जाके अच्छा कब उठते हैं बच्चा, अपना कपड़ा प्रिपेयर करते कि नहीं, उसका अपना बैग ठीक करते कि नहीं, एक गिलास पानी लेके आने से वो लेके आता कि नहीं. Small household chores self gives you motivation to listen to somebody. So ये घर से motivation must come from home. आप अकेला लड़का के साथ motivation teaching नहीं कर सकते हैं, because motivation depends on what the background the child comes from. तो हमारा very good motivation, माँ बाबा बहुत बोलता अच्छा सब motivation हो रहा है,
तो he will comply. Otherwise, okay. So this is how you will have to tackle. Every child you have to tackle, and every child is different again. Okay. Teachers, I'll take teachers, NGOs, and मैम वन yeah, no problem. मैम जब भी मेरे पास यहाँ से क्लिनिक से बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए हाँ। तो मैं यही बोलती हूँ कि फॉर वन डे आई अलाउ कि चलो देख लेते हैं कि कैसे बिहेवियर है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं कुछ तो इसलिए मैं उनको गाइड यही करती हूँ कि आप यहाँ यहीं पे आए आदो क्लिनिक में जो सेंटर है उधर जाएं सो वंस अ पेरेंट शी इन अ वे थ्रेटन मी कि आपकी ड्यूटी है हमारे बच्चों को आपको देखना है अपने स्कूल में रखना है ग्रूम करना है आपकी एथिकल ड्यूटी है तो आई फील कि अगर ऐसे होने से कुछ स्पेशल स्कूल्स या स्पेशली ट्रेन टीचर होने से तो मिस इट्स फाइन कि हम भी कॉन्फिडेंट होंगे अभी अभी ग्राउंड लेवल पे स्पेशली ट्रेन टीचर्स तो नहीं है ना मैम तो आई डोंट नो मिस हाउ टू हैंडल द सिचुएशन लवली लवली क्वेश्चंस ऐसा होता है अभी सबका राइट हो गया टीचिंग राइट हो गया पेरेंट्स का राइट हो गया एजुकेशन राइट हो गया ओके नाउ बट देन वी नो जो इस बच्चे को 25 बच्चे का साथ रखने से नहीं होगा कुछ टीचर कैन नॉट गिव बट पेपर में तो लिखा है यू विल हैव टू इंक्लूड पेपर में लिखा है स्पेशल एजुकेशन इज मस्ट बी देयर बट देन कितना स्पेशल एजुकेशन टीचर्स मिलते हैं सो नो यू डू नॉट सो ये रेशियो ही नहीं होता है ओके सो नाउ ये प्रॉब्लम देखिए ऑल चिल्ड्रन अब जब एडमिशन होगा देन ओके यू एडमिट एज पर द थिंग ओके then comes the problems that may arise after that then you have the doctor's help okay but this child is still in your school okay then maybe you can have a combined center and school he comes to the, I think there are a number of children here who are attending center attending school and then coming for remedial education you have one from that yes I have seen these children they're wonderful children and so then this center can give support you see so आप उपाय दिखा दीजिए उनको जो ये ठीक है अभी है then comes hyperactivity इसी को मारते हैं इसी को थ्रो करते हैं रनिंग अराउंड तो आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं दूसरा बच्चे का देन दूसरे पेरेंट्स भी अभी आपको बोलते हैं क्यों इसके बच्चे को क्यों तब other parents normal parents will also say ठीक है हमने वहाँ नहीं भेजेंगे क्यों दूसरा बच्चे को लेता है you see so these are a few issues that you actually have to tackle for which matter it becomes of course a very important matter for the teachers to another special educator rakna hai to give but this support you do not get so this support you can get from centers around the place yeah and sometimes even from Anganwadis I have taken that okay go to Anganwadi school will have 5 children then and there at least training can be done of sitting tolerance and all that and then you can come back to my center so you can do that so the beauty of today's is कि हम लोग collaboration करने सीख गया जो आंगनवाड़ी स्कूल में हम लोग भेज देंगे तो वहाँ में वो पढ़ेगा तो फिर आप वापस आपके पास आएंगे आप सेंटर में भेजा है तो फिर आपके पास वापस आएंगे वी एक्चुअली नीड द स्कूल्स ऑल्सो टू टेक अस अलोंग बिकॉज अभी बहुत बच्चे तो पढ़ने शुरू करेंगे जब पढ़ने शुरू करेंगे कहाँ जाएगा तो एक स्पेशल स्कूल बिकॉज यू सी ये सब बच्चा 7 साल में सीखता है ABCD वर्ड्स लिखने लिए तब फिर हम KG में कैसे डालेंगे बच्चा तो इतना लंबा हो गया so all those issues of inclusion actually are there so for that matter उसको कैसा लेके जाना है that we have and once again another thing I do is just recently हमने बच्चा एक मिला है वो 11 years है तो उसको class 3 में दिया है लेकिन वो ABCD नहीं जानते you see
सो मम्मी को होम प्रोग्राम दे दीजिए और बच्चे बिकॉज of the age and height and growth, put them in the classroom. You understand? तब भी यहाँ भी और प्रॉब्लम होगा. क्यों? नॉर्मल बच्चे के साथ जब 12 साल का बच्चा रहता है तो फिर टीजिंग एंड बुलिंग होता है, तब बच्चे का इमोशनल प्रॉब्लम होता है, तब वो एग्रेसिव हो जाता है, बच्चा एग्रेसिव हो जाता है. ओके, सो मेनी डायमेंशंस है इसमें. सो दीज अ लॉट ऑफ डायमेंशंस हैव टू बी हैंडल्ड. सो एक एक करके अभी हम लोग पहले बात सीखा है जो मे भी थोड़ा कोलैबोरेशन में काम करेंगे एंड देन देखेंगे. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. एनी नाउ? हेलो, नमस्ते मैम. नमस्ते. मैम, जैसे कि आप पहले बोली थी कि जैसे हम लोग का जो चाइल्ड होते हैं वो जो है सिटिंग विदाउट सपोर्ट, जैसे कि 9 मंथ्स को हो जाते हैं, तो हम लोग का ट्रैवल पीपल ऐसा होता है, कोई कोई पेरेंट्स जो है मतलब अच्छा से एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो ऐसे में वो अपना चाइल्ड का, अपना बच्चा का जो डिसेबिलिटी को वो पकड़ नहीं पाते हैं. जैसे कि पहले आप बोले जल्दी काउंसलिंग करना है, ये नहीं हो पाते तो बहुत देरी हो जाते हैं. तो ऐसे में अगर विदाउट मतलब सपोर्ट के वो सिटिंग अगर 9 मंथ्स को होना है तो वो मतलब कभी कभी हो जाता है 2 साल के बाद में बच्चा नहीं मतलब खड़ा हो पाते हैं ना. तो ऐसे स्थिति में क्या मैम बच्चे बाद में खड़े हो पाएंगे अगर हम उसको ट्रीटमेंट दे तो? हाँ, so that is why ये जो हम लोग बोलता है critical period. हर डेवलपमेंट हैज़ अ क्रिटिकल पीरियड. सो उस क्रिटिकल पीरियड में उसको हेल्प करना है. तो अभी तो हम लोग बच्चा मिलता है अभी 2 साल में जो बच्चा नहीं चल रहा है तब मदर्स वरी कर रहे हैं. तब तो हम लोग स्टार्ट करता है खड़ा होने के लिए, चलने के लिए हम लोग का बहुत मसल डेवलपमेंट होना है. ओके, दैट मीन्स हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, पहले सर को खड़ा होता है, तब तो फिर हम बैठते हैं, बैठ के तब फिर हम क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉलिंग करके तब हम अपने को ऐसा जगह से ऐसा उठते हैं. ओके, तब फिर हम पकड़ता है, टेबल पकड़ के ऐसा 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 करके हम जाता है. जब हमारा बैलेंस ठीक हो गया तब हम हाथ छोड़ता है, हाँ हाथ छोड़ता है, तब हम वॉकिंग करने शुरू करता है. सो आप जब हेल्प करेगा बच्चा को एट 2 years, दैट मीन्स आप देखना पड़ेगा किस लेवल में बच्चा है. क्यों अभी जो चल उसको हाथ पकड़ के चलाओ, इसको करके चलाओ, अब एडवाइस देगा तो नहीं होगा. क्यों ये नहीं बैठ पा रहे, ये क्रॉलिंग नहीं कर पा रहा है, ये टर्निंग प्रोन एंड सुपाइन नहीं कर पा रहा है, तो कैसा वो उठ के चलेगा? You see? So जो बच्चा अब 2 साल में मिलता है, you will have to see अब 2 साल में वो कितना तक करता है, तब उतना तक कर वहाँ से वॉकिंग के लिए आप कितना उसको स्टिमुलेशन करना पड़ेगा, तब आप बोल सकेगा जो बच्चा चलने होता है कि नहीं. ठीक है? दैट मीन्स हमने यू कैन नॉट स्किप developmental process. Every step must be complete before this one is reached. Okay. इसका मैडम का जो क्वेश्चन लोग ये था ना कि बच्चा 2 साल में नहीं चल रहा है ना, तो अगर हम लोग उसको 9 महीना में डिटेक्ट करने से और हम लोग उसको ट्रीटमेंट करने से वो चलना तक है ना, मतलब तक तो कोई हाँ हाँ लेट हो जाता है. वही मतलब ये अभी जो मैडम बताया स्टेप वाइज होता है डेवलपमेंट. और मैं तो नो 2 लाख दामा पे इन लाख में है 9 लाख दामा पे तो 2 साल लो सिन अगर मैं उसको मैडम के में तो देखना पड़ेगा मैं बेच सकता है कि ना क्रॉल कर सकता है. ओके, तो डायरेक्ट हेबला इन इलामा है वहाँ से डेवलपमेंट का स्टेज का दो वहाँ से शुरू करना पड़ेगा. इसलिए उन अर्ली वो डिटेक्ट 9 महीना में तो हम लोग उसको जल्दी करा सकता है कि वो स्टेज से मैंने से बैठना सिखाओ, सपोर्ट जिला क्रॉलिंग इमला दाग्रमला एमियम डेवलपमेंट आज को नॉर्मल एज के होगा गेला मुन लेट कोयम 2 साल मुन यूरोप तक मुझे एज तो बढ़ते जाएगा. एज तो रुकी कुमाए तो मुनु 2 साल में शुरू करेगा तो मुन करते करते मैं 3 साल हो जाएगा, तो 3 साल में मैं क्या कर सकता था वो अचीव नहीं होगा फिर. इसलिए मुनु में तो क्रिटिकल पीरियड फर्स्ट 3 years है. जितना अर्ली जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ब्रेन है प्लास्टिक का ना प्लास्टिसिटी है ना
उसमें अगर एक जगह डेवलप नहीं होना सिर्फ दूसरा ओवरटेक कर सकता है वो एरिया को, तब नो स्टिमुलेशन है, ब्रेन है उसका हिसाब से ग्रो करेगा। दूसरा जो एरिया है वो एक एरिया का फंक्शन को टेक ओवर करके वो 3 years तक होता है वो डेवलपमेंट ब्रेन ओके, डेवलपमेंट तक कंटिन्यू हो जाता है। मतलब जो लेट होता है प्रॉब्लम नोकना ना उमें। Hello, ma'am. I have one question. In early stage, it can be medically completely curable or not, or that student or child will remain same, or little change will be there. Very good question. Very good question. If you catch autism early, now so far what is happening is that we are starting treatment from 3 years of age. You see, because according to the our DSM-5, that diagnostic statistical manual gives you the definitive diagnosis by 3 years. So most of them are actually when the child is not talking, not communicating with others, then the treatment is started. Okay, so from there it is starting. Now the thing is this child going to be cured if you give him stimulation? Autism is not a curable disease. The changes and the deviation of the child has already taken place. Only thing is that it is a modifiable problem. Modifiable. So now catch them before 3 years. If you catch them before 3 years, because we know child is not looking eye to eye. If I do like this, the child is not coming to me. If I say bye bye, the child is not doing bye bye. Okay, if I'm calling him, he's not looking. Okay, now start stimulation. Look at his eye. Talk to him. Try to find out a reciprocal relationship. Try to do bi-directional relationship. If by you do that, you will find the child is coming up, coming up. But the fact is that the brain, uh, autism actually work because the wiring becomes different. And because of that wiring becoming different, you will find that the child does not function totally like a normal child, but he will be functional. So that is what we want. We want every child to be functional, independent, be able to work. So that is also another thing about that we are all here, we are looking at him as a child, but we have to see the adult in that child. Will this child be able to work later? Will this child be able to look after himself later? So that is called the lifespan approach. And each one of us, doctors as well as you all, must see that you must bring in functionality to the child that he'll be able to be independent later. Okay?